Hello students, now today we will take statistics. In that let us start chapter number 2.2. Now see, our chapter number 2, that is presentation of data. We have to present the data in a proper format. Up till now we have learned that presentation of data of quantitative form. Now quantitative data is over here, so now let's start collection of qualitative data. Now qualitative means if we have to collect data for any kind of quality, for example educational status, for example marital status, for example gender, so these are called as qualitative data. Now if we want to present these qualitative data in proper format, there are two methods, that simple classification of table and manifold classification of table. We present this qualitative data in table format. Simple format means ऐसा no so many columns that we will have to draw to present the data. Only simply we have to write down the information and we can easily understand that is simple presentation of data. And what manifold का मैं बता दूँ, manifold का सम आएगा. Manifold means to present the data having a table contains so many columns, that is called as a manifold table. Now let's start with sum number 1. First of all we read the sum number 1, exercise 2.2, that there were 1400 students studying in a commerce college. ये tabular, this is called as tabular method. ये tabular method में पहले पूरा के पूरा sum read करना पड़ता है, समझना पड़ता है, and then after we will solve the sum. There were 1400 students studying in a commerce college. Among them 855 were boys, and of them फिर आगे है 225 बॉयज़ वर इन द सेकंड ईयर. अभी कॉमर्स कॉलेज है तो बॉयज़ है तो ऑब्वियसली गर्ल्स भी होंगी राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वाई? बिकॉज ओनली बॉयज़ आर गिवन. Number of boys are given, number of girls are not given. So here we have to select what attributes are to be given for the preparation of table. So first of all boys and girls. So boys and girls are included in the gender. So our first attribute, that is gender. Then in the second year the number of boys and the number of girls are equal. Second year में number of boys and girls that are equal. Among 550 students of the first year, proportion of number of boys and girls is 3:2. In the year, number of boys is 3 times the number of girls. Represent the above information in a table. Table बोला है तो table draw करेंगे. First of all here commerce college is given. उसमें boys girls, तो that is our. ये attributes क्यों select करने हैं? Because table draw करना है इसलिए, और टेबल्स में हमें कॉलम्स भी रखने हैं. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो दैट इज़ जेंडर. एक कॉलम हम जेंडर का रखेंगे. फिर ये आपने देखा FISY दिया है, सो दैट मीन्स ईयर्स. तो FISY एंड TY, तो दूसरा कॉलम हम रखेंगे ईयर का, राइट. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल. नाउ सी, टेबल हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि हम डेटा प्रॉपरली लिख सकें. सो फर्स्ट कॉलम आई हैव प्रिपेयर फॉर ईयर, देन आई हैव ड्रॉ a column for gender, in that boys and girls, and then last number of students. So this we can call a simple table because there it doesn't contain so many columns. So this is simple table. टेबल के ऊपर एक हेडिंग भी लिखना है, दैट टेबल शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ स्टडी एंड जेंडर, राइट. ओके, now first of all our first step is whatever information is given in the sum, that just fill up in this table, and remaining we have to find out, right. Now first of all in this first sentence, there were 1400 students studying in a commerce college. 1400 student including boys and girls. तो ये देखो टोटल
लास्ट कॉलम टोटल का है 1400 स्टूडेंट्स, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ गए। एक एक सेंटेंस पढ़ के जाना है और सॉल्व करते जाना है। देन सेकंड सेंटेंस, अमोंग देम 855 वर बॉयज़, तो ये बॉयज़ का कॉलम है, 855 वर बॉयज़, तो रिमेनिंग वर गर्ल्स, तो 1400 माइनस 855 कम्स 545 दैट वर गर्ल्स, राइट। आगे 225 बॉयज़ वर इन द सेकंड ईयर, तो अभी इसको फिलअप करें। बॉयज़ सेकंड ईयर में बॉयज़ 225 है। आगे इन द सेकंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, ऐसा लिखा है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 225 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो भी 225। वाई? बिकॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट ऑल आर बोथ आर इक्वल इन द सेकंड ईयर। तो अभी दोनों का टोटल लिख दे, 2 2 4 एंड दिस 5, सो 450 टोटल हो गया 450। अभी हमें आगे का इन स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमें दिए हैं द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज़ 3:2। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 550 total number of students that are given in the sum. This we have to distribute in 3:2 in between 3:2, right? 550 को इन बिटवीन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 550 3:2। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 3:2 ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, दैट 3 + 2 = 5, राइट। तो बॉयज़ का 3/5 मल्टीप्लाई बाई 550 तो 330, गर्ल्स का 2/5 मल्टीप्लाई बाई 550 तो 220। तो गर्ल्स 330 बॉयज़ मैंने लिख दिया। नाउ आई विल राइट डाउन 220 गर्ल्स, राइट। नाउ इन दिस सम नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। नेक्स्ट लाइन इज इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक तो ये सर नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा ये देखिए हमारे पास टोटल है, टोटल में से ये दोनों लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लास्ट वाला सेंटेंस सॉल्व नहीं करना है, तो ये टोटल हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें से ये दोनों लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300। फिर ये 545 में से ये दोनों लेस कर देंगे तो आ जाएगा 100। इन दोनों का टोटल कम्स 400, राइट। तो टेबल हमें इस तरह से बनाना है, एक तो कितने एट्रीब्यूट दिए हैं उसके कॉलम, और लास्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली टोटल का कॉलम सारा टैली होना चाहिए। टैली मीन्स कि टोटल सेम आना चाहिए, इन दोनों का इधर टोटल टैली होना चाहिए, इन तीनों का इधर टैली होना चाहिए। If it is not tallied, that means there must be some mistake in the sum, right? आपको ये सम लिखना है तो आप वीडियो पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। Now the next sum. Sum number 2 now. First of all, read the sum. 1600 employees are working in an office. Among these employees, the number of men exceeded द नंबर ऑफ वुमन बाय 15%। एक तो पहले ऑफिस दिया है, उसमें मैन एंड वुमन आ गए। सो अवर फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज़ जेंडर, दैट इज़ मैन एंड वुमन, या मेल फीमेल ऐसा भी लिख ही सकते हैं। द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन द मैरिड एम्प्लॉयज़। सो नाउ सेकंड एट्रीब्यूट दैट मीन्स कि आपको इंफॉर्मेशन किस चीज़ का दिया है, दैट इज़ एट्रीब्यूट। Okay, the number of unmarried employees 800 less than the number of married employees. The number of unmarried women is 195. Present the above data in a suitable table. Now first of all, here there are two attributes are given, marital status and gender. Marital status में obviously married unmarried आएंगे, मेल फीमेल इधर आएंगे, राइट। आप टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं, मेल फीमेल इधर और मैरिड अनमैरिड इधर, एंड लास्ट में वर्टिकल टोटल हॉरिजॉन्टल टोटल।
Now first of all, in an office 1600 employees are working, तो total 1600 employees इधर, including married, unmarried, male, female, right? Okay. और आगे दिया है 195 दिया है, ये क्या है? द नंबर ऑफ अनमैरिड वुमन इज़ 195, तो सी फीमेल 195 अनमैरिड, बस ये दो ही इंफॉर्मेशन दिया है, बाकी का हमें ढूंढने का. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 1600 employees working in an office. Among these employees, the number of men exceeded by the number of women by 15%. So first of all, we assume that a number of male, that is x, and number of female, that is 1600 minus x, right? अभी ये जो मेल है, मेल दैट इज एक्सीडेड बाय 15%, मतलब फीमेल से 15% ज़्यादा हो रहा है, तो नंबर ऑफ फीमेल प्लस 16 ये 15%, राइट? 15% ऑफ व्हाट? 1600. ये यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये समझ में आ जाएगा. 15% किसके बढ़ रहे हैं? टोटल एम्प्लॉयज़ के. तो नंबर ऑफ मेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स प्लस 1600 इंटू 15%. ये 15% है, राइट? तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो x इज इक्वल्स टू 920. तो x क्या है? ये मेल 920 आ गए, तो नंबर ऑफ फीमेल मिल जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 1600 माइनस 920 कम्स 680. तो इसको लिख दे. टोटल मेल या मैन 920, नंबर ऑफ फीमेल 680, राइट? आगे, the number of unmarried employees 800 less than the number of married employees. 800 less है, the number of unmarried employees 800 less है, तो नंबर, इसका एक इक्वेशन बनेगा that number of unmarried employees is equals to number of married employees minus 800. तो number of married employees minus 800. एक तो number of married employees भी हमारे पास नहीं है, राइट? तो हम इसको एज्यूम कर ले, एज्यूम एज x. एंड नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज़, तो वो हम लेंगे 1600 माइनस x, राइट? तो 1600 माइनस x इज इक्वल्स टू x माइनस 100. तो इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल्स टू 1200. तो x क्या है? मेल. तो नंबर ऑफ अभी मैरिड एम्प्लॉय 1600 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 400. इसको भी हम एज्यूम करेंगे, वो इधर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट. तो अभी नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे 1600 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 400, राइट? तो ये दोनों हम अभी टेबल में लिख दे. ये मिले हैं हमें 400, दिस वन इज दैट इज 1200. नाउ वी कैन इजीली गेट दिस. नाउ सी 680 माइनस 195 कम्स 485. माइनस क्यों करेंगे? बिकॉज दिस इज टोटल, राइट? टोटल में से हमें ये दो फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी दे दिया है, तो 680 माइनस 190 कम्स 485. अभी ये वाला फर्स्ट कॉलम, दैट 1200 दैट इज टोटल, टोटल माइनस फीमेल कम्स मेल, तो 1200 माइनस 485 कम्स 750 एंड अनमैरिड. अभी आप इधर भी लेस कर सकते हैं, आप इधर भी लेस कर सकते हैं, राइट? तो 920 माइनस 715 कम्स 205. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एंड वी कैन प्रेजेंट द डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट, राइट? तो आप ये सब वीडियो पॉज कर करके भी लिख सकते हैं, राइट? And solve this again at home, practice this sum. Now I want to give homework in that solve illustration number 21. This is illustration, that's why I am giving this in homework, because solution is already there, so you can understand by seeing the solution. So illustration number 21, that is in homework, right? So in the exercise, now remaining two sums we will do in the next video. So today you write down sum number 1 and sum number 2. Sum number 3, that is that prepare a blank table. एक blank table ड्रॉ करना है, उसमें ये attributes दे दिए हैं,
द डेजिग्नेशन, मैरिटल स्टेटस एंड जेंडर, मतलब आप टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे यही पूछा है. नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड नो डेटा इज ऑल्सो गिवन, सो ओनली ड्रॉ द टेबल. तो आप ये टेबल भी ड्रॉ कर देना. सो रिमेनिंग 4 and 5 सम्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? ओके.